Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Myself Dr. Deepak Yadav. Currently I am doing my DM Neurology from AIIMS New Delhi. So आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती है और जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। So basically मेंटल हेल्थ क्या होता है? मेंटल हेल्थ इज़ ऑल अबाउट हाउ पीपल थिंक, फील एंड बिहेव। कोविड-19 एंड लॉकडाउन के टाइम पे इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। बेसिकली फिजिकल इलनेस हमें दिखाई देती है, हमें फीवर है, हमें कुछ फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो दिखाई देते हैं, जिसके बारे में हम आराम से किसी को बता सकते हैं। लेकिन हमारा ब्रेन हमारे साथ 24 घंटे अकेला रहता है। ब्रेन के साथ हमें ही डील करना होता है। अगर हम ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं दैट इज़ ओके, बट अगर ब्रेन हमें कंट्रोल करने लग जाता है देन दैट इज अ प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सम स्टैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट मेंटल। So we will discuss about the burden of mental disorder across the states of India. So this is the study published in Lancet recently. It showed in 2017 197.3 million people had mental disorders in India, including 45.7 million with depressive disorders and 44.9 million with anxiety disorders. Most common disorders were depressive disorders, anxiety disorders, schizophrenia, bipolar disorder, conduct disorder. So, in interpretation, 1 in 7 Indians were affected by mental disorder of varying severity in 2017. The proportional contributory of mental disorder to total disease burden in India is almost double since 1990. As we are physicians, so it is important to talk about doctors' mental illness also. So this is Medscape National Physician Burnout and Suicide Report 2020. They showed which physicians are most burned out. Most burned out physicians are urologists, neurologists, nephrologists, diabetes and endocrinologists and family medicine people. Although I am a neurologist, still I am not burned out. But yes, according to this study, most top 5 specialties are urology, nephrology, endocrinology and family medicine. Are more women or men physicians burned out? So women were more burned out, 48% than men. Have you ever felt suicide or attempted suicide? So around 23% men and 22% women said that yes, they had thoughts of suicide but not attempted suicide. Only 1 and 2% attempted suicide. How severe was burnout? This is according to millennial generation X and boomer according to age, various age. They divided this category. So how severe was their burnout? So according to this, 36, 46 and 50% has strong or severe impact on their life due to this burnout. Was this burnout had any effect on their relationship? Yes, 77, 73 and 69% said yes. How do physicians cope up with burnout? Most commonly they isolate themselves from others, or they do exercise, or they talk with family members, or go to sleep, and eat junk food around 33%. Are physicians depressed? 15% millennial, 18% generation X and 16% boomer said yes. Who did you tell about your thoughts of suicides? So around 27% said that they told this about their friends, and mostly go to therapist. 30%, 38% and 41% said that they went to therapist. Does your depression affect your relationship with patients? Yes, I make error that I might not ordinarily make. Around 15%, 16%, 16% said. So ये कुछ फैक्ट्स थे जो अभी डिस्कस किए हमने अबाउट मेंटल हेल्थ एंड ऑल। सो अभी हम मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स, हम कैसे पता लगाएं कि हमें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू हैं और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे मेरे फ्रेंड के साथ जो अभी डीएम एडिक्शन साइकेट्री कर रहे हैं एम्स से ही, डॉक्टर अनिल सिंह शेखावत। हम उनके साथ अभी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। न्यूरोलॉजिस्ट हो कि और मेडिसिन को भी आपने इतना ज़्यादा डिफरेंट तरीके से देखा है, सारे इतना डेप्थ में पढ़ गए, तो साथ में उनका क्या लिंक है? उनको क्या एक न्यूरोलॉजिस्ट समझता है मेंटल हेल्थ इशू के बारे में,
वो पहले मैं जानना चाहूंगा, फिर we can discuss, continue our discussion. नहीं, मैं यही डिस्कस करना चाहता था तुम्हारे साथ कि इतना सब अचीव करने के बाद भी, जैसे अभी रिसेंट इंसिडेंट था जो पता है आपको कि एक हमारे कलीग ने सुसाइड किया, कि इतना सब करने के बाद भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन किसी स्टूडेंट की लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो जाती है कि उसको ऐसा स्टेप लेना पड़ता है, सो हम उस के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप ले सकते हैं हम उसको प्रिवेंट करने के लिए? उस चीज को कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस हम हमारे कलीग्स में तो बढ़ाना ही है, और नॉर्मल जो पब्लिक है उसमें भी मेंटल हेल्थ को अवेयरनेस को बढ़ाया जाए, जिससे कि इस तरह के जो इंसिडेंट है वो प्रिवेंट किए जा सके। सो मैं उसके लिए तुम्हारी हेल्प चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं मेंटल हेल्थ है क्या। लोगों को सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि मेंटल हेल्थ है क्या। तो देखो दीपक, कैसे पता चलेगा कि मेंटल हेल्थ है क्या? या तो पढ़ने से, ठीक है, या साइकियाट्रिस्ट से बात करके, ठीक है। तो जिनके बारे में आपको स्कूल से लेके आप चाहे यूनिवर्सिटी तक भी आ गए, तो आफ्टर आना और उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलना, दोनों में डिफरेंस होगा। तो लोगों को क्योंकि WHO के जो पेज पे जाओगे ना, होम पेज पे, उस पे लिखा है कि 90% मेंटल हेल्थ इश्यूज स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन की वजह से मेंटल हेल्थ नहीं सीख करते हैं। हम कहते रहते हैं कि साइकियाट्रिस्ट का कमी है, लेकिन जहां साइकियाट्रिस्ट है वहां वो साइकियाट्रिस्ट खाली बैठे। छोटी सी बात, मेरे MD साइकियाट्री करने के बाद समझ आई मुझे कि मेंटल हेल्थ ओवरऑल तो अंडररेटेड है ही, उसमें कई बार साइकियाट्रिस्ट ओवररेटेड है और साइकोलॉजिस्ट अंडररेटेड है, क्योंकि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ चीजें बात करने में और ह्यूमन कनेक्शन की जो कन्वर्सेशन है उस चीज में ज्यादा इंटीमेसी होती है, और वो इंटीमेसी जब कोई भी चीज से गुजरता है, उन चीजों से ना, अपने थॉट्स के साथ में, अपने एक व्यवहार के साथ में, अपना एक जो एक्शन कर रहा है, जिस तरह की चीजें आ रही हैं उसके माइंड में, उनके साथ वो जब पजल्ड हो रहा होता है तो उसको वापस से हेल्दी थिंकिंग में लाया जाए। क्योंकि हमारी हेल्दी थिंकिंग इसलिए नहीं बनती है क्योंकि किसी को पता ही नहीं है बाहर कि हेल्दी थिंकिंग होती क्या है। तो इसलिए जो हमारे सराउंडिंग में जो चीजें स्किलफुल होती है, जो चीजें MRI से या बाहर कोई प्रोफेशनली दिख रहा होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, तो वो तो लोग सीख लेते हैं। लेकिन जो एक इंटरनल इन्वायरमेंट है हमारी माइंड का, जो सब आप ये बोलोगे सॉफ्टवेयर, तो वो चीजें बाहर नहीं विजिबल होती। तो हमें कभी पता चलता ही नहीं कि जो मैं सोच रहा हूँ या मैं जो मेरे दिमाग में विचार आ रहे हैं किसी सराउंडिंग को लेके इवैल्यूएट करने का, तो उसमें जब इम्बैलेंस आता था तब ऐसा होता है। तो यूथ को क्या कौन सी बीमारी होगी, कैंसर होगा या मिनिमल हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, हार्ट अटैक आएगा। जो मोस्ट कॉमन यूथ में जो इलनेस है ना दीपक, वो मेंटल हेल्थ इश्यू, ठीक है। और उसमें यूथ में जो कॉज ऑफ डेथ है ना मोस्ट कॉमन, वो है मेंटल हेल्थ इश्यू, जिसमें पहले आता है, उससे पहले आता है फिगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का भी मैं क्या बताऊं तुम्हें, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, मैं तो एडिक्शन साइकियाट्री में हूं, तो 48% जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, दे आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एडिक्शन, एंड एडिक्शन इज अ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में क्योंकि बहुत बार मेंटल हेल्थ इश्यूज हाइपोथायराइडिज्म के साथ में, डायबिटीज के साथ में, हाइपरटेंशन के साथ में, न्यूरोलॉजी में तो कितनी बार कॉमन होता है। क्योंकि कोई भी जब आपकी फिजिकल हेल्थ होगी तो साथ में भी वो मेंटल हेल्थ को उतना ही प्रोन कर सकती है। हो सकता है कि जो छोटे छोटे मेंटल हेल्थ इश्यू थे वो उसकी वजह से ज्यादा बढ़ जाएं। अब जैसे कोरोना एक फिजिकल इलनेस है, स्टिल लोगों को कितना ज्यादा पैनिक है, उसकी वजह से कितना ज्यादा लोगों को मेंटल इश्यूज बढ़ गए हैं। तो इसी तरह सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो लोगों को आपस में एक दूसरे का अटैक नहीं करना चाहिए, लोगों को मिलके काम करना चाहिए। हर चीज, कोई किसी पे प्रोफेशनल ट्रेन हो सकता है, वो ज्यादा हो सकता है, तो वो दूसरा बगल वाले की मदद लेगा तो उससे जल्दी रिकवरी पॉसिबल होगी। ये मैसेज सोसाइटी तक नहीं गया है,
और वो मैसेज कोई लेके जाता है तो उसके कलीग्स, उसके साथ वाले, सोसाइटी जो ऑलरेडी जानना नहीं चाहती क्योंकि वो ऑलरेडी स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन करती है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि जो मैंने एक पोस्ट में डाला था कि मेंटल हेल्थ में बंदा हर बार यही ट्राई करता रहता है कि वो खुद बैटल जीते, वो खुद इस दुनिया के सामने करके दिखाए, क्योंकि ये वॉइस उसके दिमाग में कहां से आई? क्योंकि लोगों ने कहा कि तुम हेल्प मांगोगे किसी की तो तुम कमजोर हो। तो ये जो वॉइस लॉन्ग लास्टिंग जो रहती है वो इतना ज्यादा दिमाग में घर कर चुकी होती है कि इंसान अपना ट्रू ओपिनियन और एग्जैक्ट हेल्प लेने में भी हेजिटेट करता है, इसलिए वो बैटल है वो लड़ता रहता है। डिप्रेशन के सिम्टम यही होते हैं कि उसको अपने बारे में खराब लगता है, इन्वायरमेंट के बारे में खराब लगता है और फ्यूचर के बारे में खराब लगता है। उसे लगता है कि उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, उसमें साइकियाट्री क्या कर लेगी, उसमें मेडिसिन क्या कर लेगी, क्योंकि मेरे इशू तो कुछ दूसरे हैं। ये वॉइस उसके दिमाग में चलती रहती है तो वो हेल्प नहीं ले पाता। और दूसरा कई बार क्या होता है, बेसिकली फिजिकल इलनेस हमें दिखाई देती है, इसीलिए उसके लिए लोग ट्रीटमेंट लेने जाते हैं। मेंटल इलनेस दिखाई नहीं देती, इसीलिए लोग बाग उसे इग्नोर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा दीपक, फिजिकल हेल्थ में क्या है कि लोगों का जो आसपास के फैमिली मेंबर्स का है वो दिख जाती है। दूसरा, लोग उसके लिए सिंपैथी दिखाते हैं तो उसको वो आराम से मतलब धड़ल्ले से जाके मदद लेता है। उसे कोई गिल्टी नहीं फील होता कि उसको पेट दर्द दिखाने में दिक्कत है। क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि उसके घर वाले उसको अप्रूवल दे देते हैं, उसकी सोसाइटी अप्रूवल दे देती है, सब लोग उसको वैलिड कर देते हैं। मेंटल हेल्थ का तो इशू ये है कि वैलिड नहीं कर रहे हैं लोग, रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हैं, तो बंदा कैसे लेने जाएगा मदद? वो वहां साइकियाट्रिस्ट के विजिट करने से पहले 10 बार सोचता है कि यार मैं अकेला ही लड़ लेता हूँ, क्योंकि वो जिसके पास जाता है तो बिना जाने पहचाने उसको एडवाइस दे देता है। और वो यार सबसे पहले मदद मेंटल हेल्थ इश्यूज में ना दोस्तों से ही मांगी जाती है, क्योंकि हमें लगता नहीं है कि डिजीज नहीं है, लेकिन वो या पेरेंट्स से मांगेगा, या पेरेंट्स मेंटल हेल्थ छोड़ो, तुम किसी से भी मदद मांगो किसी भी तरह की, तुमको अप्रोप्रिएट मदद नहीं मिलेगी। और जो मेंटल हेल्थ वाली बात है कि उसको सामने वाले को नहीं पता तो वो गलत एडवाइस देगा, तो उसको वो अपने में ले लेता है कि मैं ही रीजन हूँ यार, रो क्यों रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये कर ले, योगा कर ले, मेडिटेशन कर ले, वो कर ले। दुनिया में कोई भी इंसान सब कर लेगा यदि उसे रास्ता बताया जाए कि ये करना क्यों जरूरी है। यदि ये मदद नहीं कर रहा है तो दूसरी मदद भी अवेलेबल है, फिर वो योगा भी कर लेगा, फिर वो मेडिटेशन भी कर लेगा। कई बार क्या होता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है ना, योगा से प्रिवेंटेबल चीजें हैं, वो प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं, वो क्यूरेटिव नहीं है। लोगों को ये समझना चाहिए कि प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव और सपोर्टिव में क्या डिफरेंस है। तो ये जो चीजें हैं वो सपोर्टिव और प्रिवेंटिव है, लेकिन जिस दिन हो गया, मान लो मुझे मोटिवेशन ही नहीं आ रहा, मुझे करने का मोटिवेशन नहीं आ रहा, जो मैं उठ के अपना बेड को समेटने में दिक्कत आ रही, मुझे कपड़े पहनने में अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी बॉडी एनर्जी मेरे साथ नहीं दे रही है, मेरा माइंड स्टक हो रखा है, और उसमें जब मैं अपना खाना खाने में इंटरेस्ट नहीं है, जब मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरा जिंदगी में जीना कोई मतलब नहीं है, तो उसमें योगा कैसे उसको करने को मतलब योगा के लिए कहाँ से मोटिवेशन लाएगा? कि जो लोग मरना चाह रहा है वो ये सोचेगा कि मैं योगा करूँ। बेसिकली इट इज प्रिवेंटिव नॉट क्यूरेटिव। योगा आप उसको प्रिवेंट करने के लिए कीजिए, वो क्योर नहीं है। क्योर के लिए आपको एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ही होगा। सिम्टम्स क्या क्या होंगे, लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो एक मेंटल हेल्थ इश्यू से डील कर रहे हैं? बिल्कुल मैं बताता हूँ। देखो साइकियाट्री में ना दीपक 3 डायमेंशन में आप बांट सकते हो। एक तो जनरल मेंटल हेल्थ इश्यूज, जिसमें डिप्रेशन मोस्ट कॉमन है एज ए डायग्नोसिस, लेकिन जब एक एंजाइटी डिसऑर्डर होता है उसमें जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर आता है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर आता है, और भी बहुत सारे एंजाइटी के डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। तो उसमें ओवरऑल तो एंजाइटी मोस्ट कॉमन है, लेकिन एज ए डिजीज अकेला लेंगे तो डिप्रेशन मोस्ट कॉमन है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिप्रेशन और एंजाइटी दूसरी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम में प्रेजेंट हो सकती हैं। वो कहां से आएंगी मैं बताऊंगा अभी। तो एक जनरल मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गए, जिस ओसीडी होता है, जिसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसके बारे में दुनिया कोई बात ही नहीं करती है, कितने सारे लोग उससे सफर कर रहे हैं। और जो आता है कि जो ईटिंग डिसऑर्डर आते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग एनोरेक्सिया वाला जो होता है, बुलिमिया वाला होता है, दोनों का मिक्स होता है, वो हो गया।
फिर आते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जिसमें हमारे कोई भी बॉडी पार्ट को लेके हमें वो उससे डिस्टॉर्टेड वे में लगने लग जाए, जिसके ऊपर से बहुत ज्यादा इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें जितना वो माइंड से जो चीजें कर सकता था वो नहीं कर पाता है। फिर आता है कि आपका जो जनरल साइकियाट्री में मोस्ट जो दूसरा जो सिजोफ्रेनिया जो साइकोसिस होता है, जिसमें लोग उसकी तो बात ही नहीं करते हैं लोग। उनका दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ, सिजोफ्रेनिया लोग साइकियाट्री को ना सिजोफ्रेनिया से बस कंपेयर करते हैं और उन लोगों को लगता है कोई डिसऑर्डर नहीं है, जबकि सिजोफ्रेनिया जो आज से हजार साल पहले जो प्रॉब्लम थी ना, वही आज है 1000 में 1 को। उसमें भी लोग नहीं विजिट करा पाते क्योंकि घर वाले उसको दबाते रहते हैं कि उनको लगता है कि यार हमारे बच्चे की शादी कौन करेगा, हमारे बच्चे में ये कौन करेगा, शादी से ठीक हो जाएगा, फिर करा लेंगे, या फिर वो लोकल लेवल पे जाके कहीं पे लोकल ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाते, क्वैक्स के पास जाते रहते हैं उसके लिए। एग्जैक्टली। दूसरा दीपक, साइकियाट्रिस्ट बस लोग यदि पता भी चल जाए ना कि बीमारी है तब भी नहीं जाते हैं। उसका रीजन भी वही सोशल के जो स्ट्रक्चर दो इस तरह से फैब्रिकेट हो रखा है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उन लोग नहीं जा पाते, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं तो प्रिय हवा का चक्कर है, ये तो किसी ने जादू टोना करा दिया है, ये तो एस्ट्रोलॉजी का मैनिफेस्टेशन है, ये तो पता नहीं कहाँ से कौन सी थ्योरी लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं मानता था, ऐसा नहीं कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानते हैं, लेकिन जब ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जब लोग अवेलेबल हैं, तो भी वो मैसेज सोसाइटी तक नहीं जा रहे हैं। उनको साइकियाट्री में सबसे पहले जरूरी ये चीज है कि जब तक डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं बनेगा, आप मेडिसिन ब्लैंक कितना भी खिला दो, इवन डिप्रेशन में भी बिना बात करे मेडिसिन चलाई जाएगी तो नहीं काम करेगी, क्योंकि उसमें जो साइकियाट्रिस्ट का जो रेपुटेशन होता है ना, रेपुटेशन जो होता है, थेरेपेटिक रिलेशनशिप होती है साइकियाट्री में, उसमें ज्यादा हीलिंग पावर है। उसके साथ यदि आप उसको पॉइजन भी दोगे ना, मतलब ये बोलूं तो वो खाने के लिए भी रेडी हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आती है कि जो एक प्रॉपरली ट्रेंड प्रोफेशनल के थ्रू जब मेडिसिन नहीं जाती है तो वो मानता भी नहीं है, तो क्यों मानेगा, है ना। तो इसलिए डिप्रेशन को हील करने के साथ में एक जो डॉक्टर्स के साथ थेरेपेटिक हीलिंग जो पावर है उसके साथ देना जरूरी है, ताकि वो रेडी हो जाए, ताकि उस चीज के लिए एक्सेप्ट तो करे कि हाँ क्यों जरूरी है। यदि मेडिसिन ही सब कुछ थोड़ी साइकियाट्री में काउंसलिंग है ना, तो लोगों को लगता है कि सबसे बड़ा दागी की बात करके कौन क्या कर लेगा। क्यों उनको ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने आज तक इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बड़े बाबा से लेके मोटिवेशनल स्पीकर से लेके उनकी सब बात उन्होंने करने की कोशिश करी, तो उनको लगता है कि साइकियाट्रिस्ट और थेरेपिस्ट के पास में ऐसा क्या पावर होगा, तो वो उन्हें भी नहीं भरोसा करते, क्योंकि उनको लगता है कि ये क्या करे। तो ये जो मैसेज है उन नॉन प्रोफेशनल ज्यादा इतना ज्यादा कर रखा है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि एक प्रॉपर ट्रेंड प्रोफेशनल के पास जाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि कई बार लोग हमें ये कह देते हैं कि तुम्हारे पास आने के बाद भी तुम नहीं बचा पाते हो। मैं बताता हूँ क्यों नहीं बचा पाते हैं। क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज एक सिंगल इवेंट नहीं होता है, वो सालों की दबाई हुई इमोशंस हैं सोसाइटी के द्वारा। जब वो वहां तक साइकियाट्रिस्ट तक पहुंचता है तो साइकियाट्रिस्ट को भी एक प्रोफेशनल वो चीजें बहुत सारे डायमेंशन ढूंढने पड़ते हैं, जिसमें कई बार पेशेंट को बताने में, यार जिसको पता नहीं वो सारी चीजें कैसे बता पाएगा, एक सेल्फ डायग्नोसिस करके कैसे पहुंचेगा कोई, तो उसमें वो अपने हिसाब से बताता है कि मुझे कौन सी इंपॉर्टेंट बातें बतानी चाहिए। लेकिन साइकियाट्री में क्या होता है, जैसे जब से आप पैदा हुए तब से बात करना शुरू, जब से आप सारा बात बताना शुरू करो तब उसमें तो उसमें भी कई बार, क्योंकि डायग्नोसिस साइकियाट्री के बहुत ज्यादा कोलैप्स करते हैं, क्योंकि इसलिए कोलैप्स करते हैं क्योंकि सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज है ना, डिप्रेशन सिम्टम जैसे प्रेजेंट हो सकते हैं, आप डिप्रेशन को ठीक करते रह जाते हो और जो इलनेस है वो रह जाती है। तो मेल के फीमेल के अलग इश्यूज होते हैं, ट्रांसजेंडर के अलग इश्यू होते हैं, बच्चे के अलग होते हैं, और एक जो एडोलेसेंट होता है उसमें डिफरेंट प्रोफाइल होती है, अडल्ट होते हैं उनमें डिफरेंट प्रोफाइल होती है, अडल्ट के बाद जो जाती है उसमें डिफरेंट होता है, एल्डरली में डिफरेंट होता है। उसमें जो सबसे ज्यादा जो इलनेस होती है मेंटल हेल्थ इश्यूज वो आती हैं 14 साल से लेके 29 साल के बीच में, मोटा ये समझ सकते हैं हम। और यही सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव एज होती है जिसमें वो दुनिया का सबसे कोई भी काम कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर उसके बच्चे डिपेंडेंट होते हैं और अपने जो एल्डरली हैं जो वर्किंग प्रोफाइल दोनों पर डिपेंड करती है। वर्ल्ड की ग्रोथ, देश की ग्रोथ, किसी की भी इस यूथ पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। जब उसमें इतने ज्यादा इलनेसेस जो आपस में ही बढ़ा रहे हैं लोग,
उसको डिस्कस कर जाएंगे तो दिक्कत बढ़ जाता है। इसलिए ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस करना। माइंड और बॉडी का जो सिलेक्शन है, कनेक्शन है, वो बाय डायरेक्शनल है। जो हमारी फिजिकल हेल्थ होते हैं हमारी मेंटल हेल्थ खराब करते हैं। मतलब मेंटल हेल्थ को मैं तो ये कहूंगा कि जो ब्रेन के जो डिसऑर्डर है, जो मोलिकुलर लेवल पे हैं, तो वो जो मोलिकुलर लेवल तो ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि हम कितनी बात तुम तो न्यूरोलॉजी में समझते होगे, क्योंकि ब्रेन का एक छोटा सा एरिया बहुत सारे फंक्शन कवर करता है। इवन जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है, जो इमोशनल रेगुलेशन सेंटर है, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसके न्यूरोलॉजी के फंक्शन अलग होते हैं कंप्लीट, और जो साइकियाट्री के जो इमोशनल पार्ट हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। लोग दोनों में मर्ज कर देते हैं। तो जो सॉफ्ट चीजें जो है इमोशंस वाली, वो कंप्लीटली अलग होती हैं। नॉर्मल इंसान, एक जो सोसाइटी का नॉर्मल इंसान है, उसको क्या सिम्टम्स होंगे तब उसको लगे कि उसको एक हेल्प चाहिए साइकियाट्रिस्ट की, या वो जनरल में बताइए। ठीक है, तो जो हायर मेंटल फंक्शन को साइंटिफिकली बता दिया, अब मैं उसको छोटे छोटे सिम्टम में तोड़ देता हूँ, जिसमें उसको ये लगने लगे कि उसका मन उदास है, उसका मन छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन हो रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है, उसको अपना ओपिनियन रख रहा है तो इरिटेशन महसूस हो रही है। एक तो बात करने की जो चीजें ओपिनियन वाली है उसमें उसको डिस्टर्बेंस होने लगे, इरिटेट महसूस होने लगे, तो मूड का जो है इस तरह से प्रेजेंट होगा। दूसरा होगा नींद का। नींद में भी ये होगा कि या तो नींद ज्यादा आ रही है या नींद कम आ रही है, या नींद लेट से आ रही है या जल्दी टूट जा रही है, जल्दी टूट जा रही है, या सोने के लिए उसको एडिक्शन का, उसको मेडिकेशंस का, उसको कुछ चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल बोध तारिणी को। आगे आने वाले वीडियोस में हम डिप्रेशन एंड हाउ टू प्रिवेंट सुसाइड इसके बारे में बात करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।